The complexity of modern problems often precludes any one person from fully understanding them. ठीक है, कोई एक पर्सन उसको सही से पूरी तरह से नहीं समझ सकता है. Factors contributing to rising obesity levels, for example, include transportation system and infrastructure, media, convenience, food, changing social norms, human biology, and psychological factors. So there are so many things जिसपे एक चीज एक प्रॉब्लम टिकी होती है. द मल्टी डायमेंशनल और लेयर्ड कैरेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑल्सो अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ मेरिटोक्रेसी. ओके, सो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इज फैक्टर्स, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर, एंड the multiple dimension or layered character of complex problem also undermines the principle of meritocracy. So it also undermines, नीचे रखती है meritocracy को. What is meritocracy? Let's study. The idea that the best person should be hired. There is no best person. When putting together an oncological research team, a biotech company such as G or G would not construct a multiple choice test and hire the top scorers or hire people whose resume score highest according to some performance criteria. Instead, they would seek diversity. They would seek diversity. So rather than taking the best of the lot, they prefer diversity. They would build a team of people who bring diverse knowledge based tools and analytic analytical analytics skills जो भी है. ठीक. तो ये सारी चीजें हमें समझ आई कि अच्छा ठीक है यार, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इट इज लाइक there are multiple factors involved and meritocracy भी नीचे रहती है, and we focus more on diversity if we want to build a team as compared to rather taking the best of the lot. Believers, believers in a meritocracy might grant that team ought to be diverse, but then argue that meritocratic principles should apply within each category. Thus, एक ये बिलीवर्स इन मेरिटोक्रेसी जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो ठीक है, डाइवर्सिफाई करना है तुम कर लो, बट इन एवरी डाइवर्स फील्ड देयर शुड बी द बेस्ट, मतलब हर एक कैटेगरी में बेस्ट पर्सन ले लिया जाए. Thus, the team should consist of the best mathematicians, the best oncologists, the best biostatistician from within the pool. That positions suffer from a similar that positions suffer from a similar flaw. So there is some issue with this. ठीक है, ये बिलीवर्स ऑफ मेरिटोक्रेसी का थॉट था, ये ऑथर का थॉट है. फर्क समझ रहे हो ना? मेरा दोस्त मानता है ये चीज, मैं नहीं मानता हूँ. इवन विद अ नॉलेज डोमेन Even with a knowledge domain, no test or criteria applied to individual will produce the best team. Each of these domains possesses such depth and breadth that no test can exist. Considering the field of neuroscience, upwards of 50,000 papers were published last year covering various techniques, domains of inquiry, and level of analysis, ranging from molecule and synapses up through new networks of neurons. Given that complexity, any attempt to rank a collection of neuroscientists from best to worst as if they were competitors in the 50-meter butterfly must fail. So there is no test which can tell कि कौन best है because of this complex topics and all. So what could be true is that given a specific task and the composition of a particular team, one scientist would be more likely to contribute than another. Optimal hiring depends on context. Optimal team will be diverse. तो डाइवर्स तो हम पहले भी ऊपर बोल चुके हैं. ठीक है, और जो हायरिंग होनी चाहिए वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होनी चाहिए, ना कि रादर देन जस्ट कि एक टेस्ट दिया और फिर वैसे. एविडेंस फॉर दिस क्लेम. अब एविडेंस फॉर दिस क्लेम, ये हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ आइडिया कर रहे हैं. एविडेंस फॉर दिस क्लेम कैन बी सीन इन द वे
can be seen in the way that papers and patents that combine diverse ideas tend to rank as high impact. It can also be found in the structure of the so called random decision forest, a state of the art machine learning algorithm. It can also be found in the structure of the so called random decision forest, a state of the art machine learning algorithm. द सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे इसको रिलेट कर दिया, ये जो भी डाइवर्स थॉट और टेंस जिसमें डाइवर्स थॉट है उसको हायर रैंक करने वाली चीज़ को हमने रिलेट करा है एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से भी, ठीक है। बट इसका इससे क्या रिलेशन है, क्यों रिलेशन है, इस चीज़ को हम होल्ड पे रखेंगे अनलेस वो हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ लेता है। रैंडम फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ensembles of decision trees. If classifying picture, each tree makes a vote. Is that a picture of a fox or a dog? A weighted majority rules. Random forest can serve many ends. अब इसमें क्या है, लाइक देयर आर रैंडम फॉरेस्ट तो नहीं बोलोगे तुम, चलो ट्रीज हैं, ठीक है। सो एक ट्री बोल रही है कि ये फॉक्स है कि डॉग है, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी ट्रीज जो कि डाइवर्स हैं, रैंडम फॉरेस्ट है वो। और उसका जो वेटेड मेजॉरिटी रूल्स, तो वहां पे एक वेटेड मेजॉरिटी रूल्स आता है, ठीक है। जो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं वही सच है, ठीक। Random forest can serve many ends. They can identify bank frauds and diseases, recommend ceiling fans, and predict online dating behavior. When building a forest, फॉरेस्ट यहाँ पे वो वैसा फॉरेस्ट नहीं है, इट्स मोर अबाउट पीपल। ये थोड़ा सा लिटरल मत ले लेना उसको, ठीक है। रैंडम फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया था कि ये जो डाइवर्स हायरिंग वाली चीज थी, ठीक है। When building a forest, you do not select the best person tree as they tend to make similar classification, क्योंकि उनके thought process सेम होते हैं वो। You want diversity. So programmer achieve that diversity by training each tree on different data, a technique known as bagging. They also boost the forest cognitively by training trees on the hardest case, those that the current forest gets wrong. This ensures even more diversity and accurate forest. Yet to yet the fallacy of meritocracy, yet the fallacy of meritocracy persists. Corporations, non-profit, government, universities, even preschool test schools and hire the best. This is all but guarantees not creating the best. This is all but मतलब होता है इसका, this all but का क्या मतलब होता है कि ये सब कुछ करेगा एक्सेप्ट, ठीक है। दिस इज ऑल बट, जैसे कि दिस इस जैसे एक रेनबो का तुम ऐसे देख लोगे, रेनबो मतलब छोड़ो, दिस इज ऑल, दिस इज एवरीथिंग एक्सेप्ट, इसको ऐसे पढ़ते हैं, दिस इज ऑल बट गारंटीज नॉट क्रिएटिंग द बेस्ट टीम। लाइक ये सारी चीजें हो जाएंगी बट एक बेस्ट टीम नहीं क्रिएट हो पाएगी, उसके अलावा दुनिया भर की सारी चीजें पॉसिबल है। So this all but guarantees not creating the best team. Ranking people by common criteria produces homogeneity that is not likely to lead the breakthrough. ठीक है, तो ये पूरा पैसेज था, इट वाज अगेंस्ट मेरिटोक्रेसी क्लियरली, क्योंकि ही इज सेइंग फैलेसी ऑफ मेरिटोक्रेसी, ठीक है। येट द फैलेसी ऑफ मेरिटोक्रेसी परसिस्ट। फैलेसी का क्या मतलब होता है, लाइक फॉल्स बोल सकते हो इजी लैंग्वेज में, बट उसको थोड़ा सा एक हायर लेवल ऑफ, थोड़ी हायर डिग्री पे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कर लो। आई होप पैसेज समझ आया होगा। ठीक है।
The author critique meritocracy for all of the following reasons except, तो तीन रीजंस हैं और एक रीजन है जो नहीं है. Modern problems are multifaceted and require various skill set to be solved. This was the thing author talked about और इसके थ्रू उसने इवेल्युएट करा था मेरिटोक्रेसी को. सही है. So this can't be my answer. Diversity and context specificity are important for making major advances in any field. Diversity and context. Diversity and context. आओ देखें. What could be true is that given a specific task and the composition of particular team, one science would. हाँ, optimal hiring depends on context. Optimal team will be diverse. So this was something the author critiqued meritocracy over. ठीक. और यहाँ पे एनी फील्ड लगा दिया है. क्या ये एक्सट्रीम है? ये एक्सट्रीम है. बट यहाँ पे भी तो ये एनी एनी फील्ड के बारे में बात कर रहा है. कह रहा है चाहे वो ये था ना ये, चाहे वो बेस्ट न्यूरो साइंटिस्ट हो, बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हो, बायोस्टैटिस्टिशियन हो, कह रहा है सब में ही हमें एक ऐसे डाइवर्सिटी रखनी पड़ेगी टू कम अप विद बेटर आइडिया. ये बी वाली पॉइंट की जो वो है, हम लास्ट लाइन से भी देख सकते हैं, उसने मेजर ब्रेक थ्रू की बात करी है वहां पर भी, लास्ट पैराग्राफ में, अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो. हाँ. सी है, क्राइटेरिया डिजाइन टू एसेस मेरिटोक्रेसी आर insufficient to test expertise in any field of knowledge. Criteria designed to assess merit are insufficient to test expertise in any field of knowledge. Any attempt to rank a collection of any attempt to rank a collection of neuroscientists from best to worst as if they were competitors in the 50-meter butterfly must fail. Must fail. So there is no right, no criteria, no test. Even with the knowledge domain, no test, no criteria applied to an individual will produce the best team. Each of these domain possesses such depth and breadth that no test can exist. यहाँ पे लिखा हुआ है criteria designed to assess merit are insufficient to test expertise in any field of knowledge. So इसको जरा होल्ड कर लेते हैं. ठीक. D. An ideal team comprises of best individuals from diverse field of knowledge. An ideal team comprises of. क्या ऑथर ने ये चीज बोली है? An ideal team comprises of best individuals from diverse field of knowledge. यहाँ पे बोल रखा है ऑथर critiques meritocracy for all of the following reasons except. उसने कहीं पे ये नहीं बोला कि an ideal team comprises of best individuals from diverse field of knowledge. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? टन टन टन। तो ये वाली चीज तो बोल रखी है, तो ये आंसर नहीं है. ये वाली चीज बोल नहीं रखी, तो ये आंसर है. ठीक है. ये इजी क्वेश्चन था. सेकंड पे आ जाओ.
weaken the efficacy. Weaken the efficacy. हम्म। चलो देखते हैं। Which of the following condition would weaken the efficacy of a random decision forest? Efficacy का क्या मतलब होता है? The ability to do certain work या certain thing. वीकेन द एफिकेसी मतलब उसकी एफिशिएंसी, एक तरह से इजी लैंग्वेज में तुम समझ लो। एफिशिएंसी और एफिकेसी सेम नहीं होता है, बट एक मान सकते हो, चलो आसानी से समझने के लिए। वीकेन द एफिकेसी if large number of decision tree in the ensemble were trained on data derived from easy case। ओके, तो अगर हम लोग इजी केस से हम लोग उसको ट्रेन करेंगे तो वो सिर्फ इजी चीजें कर पाएगा। दिस इज गोइंग टू वीकन द एफिकेसी ऑफ अ रैंडम डिसीजन फॉरेस्ट प्रोबेबली। सो इसको होल्ड कर लेते हैं। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन ट्री इन द ensemble वर trained on data derived from easy and hard। सो इसमें और इसमें क्या फर्क है? विच इज गोइंग टू वीकेन? अगर ए और बी में ही तुम्हें सेलेक्ट करना होता, सो बी वोंट बी वीकनिंग, ए वीक करेगा, राइट? अभी तक तो इसको एलिमिनेट कर दो। फिर इफ द टाइप्स ऑफ ensembles of decision tree in the forest were double types। टाइप्स का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी। अगर हमने डाइवर्सिटी इंक्रीज कर दी, एक टाइप के मतलब जैसे हमारे पास पहले 4 टाइप के लोग थे, फिर हम 8 टाइप के लोग ले आए, तो क्या ये वीकेन करेगा एफिकेसी को कि ये स्ट्रेंथन करेगा? ये स्ट्रेंथन कर देगा हमारे डिसीजन को। सो दिस इज ऑपोजिट। इफ द टाइप्स ऑफ डिसीजन ट्री in each ensemble of the forest were double, types of decision tree in each ensemble of a forestry were double। if the types of ensemble of डिसीजन ट्री मतलब जो टाइप्स हैं, जैसे ए बी सी डी 4 टाइप है, 1 1 1 1, अब दो 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 ले लिए। पहले एक पर्सन था, अब दो 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 पर्सन हो गया। ठीक है। सो इससे क्या इम्पैक्ट कुछ आएगा? शायद ना आए, नो इम्पैक्ट आए, या शायद आ भी जाए, क्योंकि दो लोग हैं तो दो लोग का एवरेज डेटा लेके हम मतलब शायद बेटर कर सकते हैं। तो हम शायद नो इम्पैक्ट या फिर स्ट्रेंथन में से कोई एक चीज आएगी इसकी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ये भी हट गया। तो दिस इज योर आंसर। वीकेन द एफिकेसी। क्वेश्चन जितना अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से कर पाओगे सॉल्व। क्वेश्चन जितना खराब ढंग से पढ़ोगे उतना फंस जाओगे। इनवैलिडेट।
Which of the following conditions, if true, would invalidate? ये क्या है? ये सिचुएशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इफ ट्रू, सो इट्स मोर लाइक अ कि अभी ये ट्रू नहीं है बट ये अभी सिचुएशंस है। वुड इनवैलिडेट द पैसेज मेन आर्ग्यूमेंट, कौन सी चीज अगर ट्रू हो गई तो इनवैलिडेट कर देगी द पैसेज मेन आर्ग्यूमेंट क्या है कि यार डाइवर्सिटी होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट हायरिंग होनी चाहिए, सो दैट विल हेल्प अस। ठीक है, इंक्रीजिंग द एफिकेसी ऑफ डिसीजन मेकिंग या जो भी है। इफ असेसमेंट टेस्ट वर मेड मोर एक्सटेंसिव एंड रिगरस, अगर हमने असेसमेंट टेस्ट को मोर एक्सटेंसिव और रिगरस कर दिया, ठीक है, अगर ये चीज हो गई तो ऑथर तो कह रहा है कि यार कोई टेस्ट है ही नहीं जो मतलब सही से आइडेंटिफाई कर जाए, बट हम कह रहे हैं इफ असेसमेंट टेस्ट वर मेड मोर एक्सटेंसिव एंड रिगरस, कि पहले हम लोग लेवल 1 के क्वेश्चन पूछ रहे थे लोगों को सेग्रीगेट करने के लिए, अब हम लोग क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट कर देते हैं, जो टेस्ट करना है उसको डिफिकल्ट कर देते हैं। बट दिस इज नॉट गोइंग टू इनवैलिडेट ऑथर्स मेन आर्गुमेंट। वाई? क्योंकि यार ऑथर ने बोला है कि कोई टेस्ट ही नहीं है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो जो टेस्ट है उसको ही और एक्सटेंसिव कर दो, सो दिस कांट बी योर आंसर। समझ आता है कुछ? ठीक है। इफ टॉप स्कोरर्स possessed multidisciplinary knowledge, that enable them to look at a problem from several perspectives. If top scorer, जो भी टॉप स्कोरर होता है, possessed multidisciplinary knowledge, मतलब उसके पास डाइवर्स नॉलेज है, that enable them to look at problem from several perspectives, so उस बंदे के पास ही वो डाइवर्सिटी है जो हम खोज रहे हैं। तो जो टॉप, अगर अगर टॉप स्कोरर के पास ये डाइवर्स नॉलेज है, तो दिस इज गोइंग टू इनवैलिडेट द पैसेज मेन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि पैसेज का क्या कहना है कि यार सिर्फ टॉप स्कोरर को अगर सेलेक्ट करोगे तो उससे हमारी एक बेस्ट टीम नहीं बनेगी। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि अगर, इफ ट्रू, अगर टॉप स्कोरर के पास मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज है दैट एनेबल देम टू लुक एट अ प्रॉब्लम फ्रॉम सेवरल पर्सपेक्टिव, सो दिस इज समथिंग विच इज इनवैलिडेटिंग पैसेज का मेन आर्गुमेंट, क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉब्लम ये हो जा रही की थी कि हम सिर्फ एक ही जगह का बेस्ट ले ले रहे थे, तो हमें डाइवर्स नहीं मिल पा रहे थे लोग, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई कि डाइवर्स, टॉपर ही डाइवर्सिटी लेके आ रहा है। So that is why it will invalidate the passage argument. So we will hold this. ठीक है। If it were proven that team characterized by diversity end up being conflicted about problem and take a long time to arrive at a solution. If it were proven that team characterized by diversity end up being conflicted about problem and take a long time to arrive at a solution. ठीक है। क्या अच्छा ठीक है, अगर ये चीज हो भी रही है, ये चीज हो भी रही है, इसके बारे में क्या ऑथर ने कहीं पे बात करी है कि उसने कहीं पे ऐसा बोल रखा है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगी उनके बीच में या नहीं अराइज होगी, कुछ ऐसा बोला दोनों बोथ साइड? उसने क्या, ऑथर ने कहीं पे ये बोला है लॉन्गर टाइम लगेगा कि शॉर्टर टाइम लगेगा? ऑथर ने क्या बोला है कि यार एक आइडियल टीम वो होती है जिसमें डाइवर्सिटी होती है। ठीक, दिस इज समथिंग जो तुम रियल लाइफ से लेके आओगे, ठीक है, दिस इज समथिंग जो तुम रियल लाइफ से लेके आओगे कि हाँ यार कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी एंड टेक अ लॉन्गर टाइम टू अराइव एट अ सॉल्यूशन भी हो जाएगा, दोनों चीजें नेगेटिव लग रही हैं, ठीक है, दोनों चीजें नेगेटिव लग रही हैं, तो तुम सोचोगे कि यार ये तो इनवैलिडेट कर जाएगा पैसेज का मेन आर्ग्यूमेंट, पैसेज में, बट मेन आर्ग्यूमेंट इनवैलिडेट नहीं करेगा क्योंकि मेन आर्ग्यूमेंट इससे रिलेटेड ही नहीं है।
कहीं पे बात ही नहीं करी। और कई बार हमें टेंडेंसी होती है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ देख लेते हैं तो हमें लगता है कि यार दिस इज रॉन्ग। इट इज़ ओके टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ सेटिंग। कॉन्फ्लिक्ट्स लॉन्गर, अगर तुम्हें लॉन्गर टाइम लग रहा है बट यू आर अराइविंग एट अ गुड सॉल्यूशन, दैट इज बेटर रादर देन हैविंग शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन एंड कमिंग टू रॉन्ग कंक्लूजन्स। ठीक। सो ये चीज़ समझ आती है। और दूसरी चीज़, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होती हैं, डाइवर्सिटी होगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो कहीं ना कहीं होंगी। ठीक है, सो दैट इज ओके, दैट इज फाइन। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड, क्योंकि उससे तुम एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंचते हो। समझ आ रहा है कुछ? सब ऊपर से जा रहा है। सो ये रियल लाइफ इशू जो है, तुम्हें लग रहा होगा कि यार कि यार ये तो गलत ही है, बट ऑथर के जो मेन आर्ग्यूमेंट है उसको इनवैलिडेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑथर ने यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं रखा है इससे रिलेटेड। तो रियल लाइफ इशू या जो तुम्हारे जो एक्चुअल मतलब तुम्हारा जीवन है उसका विजन इसमें मत घुसेड़ देना। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? फिर है, इफ अ न्यू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम were developed that proved to be more effective than the random decision forest। एक नया एल्गोरिदम हम ले आए that proved to be more effective than the random decision forest। अगर ये चीज़ ट्रू हो गई, सो ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट क्या था कि भाई ग्रुप आइडियल टीम वो होती है जिस डाइवर्स होते हैं, जिसमें कॉन्टेक्स्ट होता है। बट ये तो कोई रैंडम सी चीज आ रही है विच हैज नो इम्पैक्ट ऑन ऑन पैसेज का मेन आर्ग्यूमेंट। जैसे तुम्हारे आई एम सिलेक्शन में, या छोड़ो, इसमें आई एम सिलेक्शन में तो हर चीज ही हो जाती है। ठीक है, तो नो इम्पैक्ट इसमें हो जाएगी तुम्हारा, क्योंकि दिस इज समथिंग जो बहुत ही दूर की बात, लाइक नॉट रिलेटेड टू द लाइक पैसेज का मेन आर्ग्यूमेंट। दीज आर लाइंस स्टेटेड इन पैसेज, बट इसका कोई सिर पैर नहीं है, क्योंकि देखो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बोल रखा था। एंड ये एक ऐसी चीज है ना, ये एक होता है लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैरा ट्रैप भी इसको तुम ले सकते हो। वाई? क्योंकि क्या होता है यार, ह्यूमन माइंड के हिसाब से जो तुम लास्ट में पढ़ते हो ना यार, वो तुम्हें ज्यादा रिटेन रहता है हमेशा, क्योंकि ऊपर का तुम भूल जाते हो, क्योंकि मेमोरी ये इसी तरह से काम करती है। ठीक है, तो एक ऑप्शन वो इससे रिलेटेड दे देगा तुमको कि देखो, यार यहाँ पे मशीन लर्निंग है, डेवलपमेंट है दैट प्रूव टू बी मोर इफेक्टिव देन रैंडम। दिस इज समथिंग विच कैन बी ट्रू ऑल्सो, बट दिस इज नॉट समथिंग विच इज आंसरिंग द क्वेश्चन, दिस इज नॉट समथिंग विच इज इम्पैक्टिंग द पैसेज का मेन आर्ग्यूमेंट। समझे? बट दिस इज नॉट इवन स्टेटेड भी, कह स्टेटेड भी नहीं कह सकते, स्टेटेड या फिर सिमिलर वर्ड्स यहाँ पे देख सकते हो तुम, सिमिलर वर्ड्स यूज्ड। ठीक है, तो तुम्हें लगेगा। मुझे बी वाले में डाउट है एक बार। इसमें मतलब पैसेज में वो इस चीज़ की बात कर रहा है ना कि जो वो टॉप स्कोरर्स होते हैं उनकी वजह से डाइवर्सिटी नहीं आ पाती, बट इधर इसने बोल दिया कि डाइवर्सिटी मतलब टॉप स्कोरर्स में ही डाइवर्सिटी है, तो इसीलिए हमने वो किया है, इसको नहीं नहीं, चूज उसने किया ये है। नहीं बोला, उसने बोला पैसेज में कि अगर हम टॉप स्कोरर को ले लेंगे, ठीक है, तो मे बी उस तरह से डाइवर्स व्यूज नहीं आ पाए, क्योंकि उसका ये कहना है कि हम कोई सही से इवेल्युएट तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना कि अगर मैथमेटिशियन है तो अगर किसी का 100 on 100 है और किसी का 99 on 100 है, तो हम 100 on 100 को ले लेंगे क्या? बट इट कैन ऑल्सो लीड टू कि उसको में भी वो वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पता हो जो 20 आए। ठीक है, और उसको दूसरे वाले 20 पता हो, क्या पता उसको जो जो टॉपर है उसको सिर्फ और सिर्फ 22 के 22 ही क्वेश्चन पता हो। समझ रहे हो? बट फिर मतलब ये तो हम ओवर एनालाइज नहीं कर रहे। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि पैसेज में तो उसने उसकी मतलब मेन मांग तो ये थी ना कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इसीलिए हमें टॉपर्स को सिलेक्ट नहीं करना सिर्फ, क्योंकि अगर हम सिर्फ टॉपर्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो डाइवर्सिटी नहीं आएगी नॉलेज की। बट इसमें तो उसने यही बोल दिया ना कि टॉपर्स में ही डाइवर्सिटी है, तो एक तरह से इसमें मतलब
जो पैसेज का मेन आइडिया वो तो फुलफिल हो ही रहा है ना, कि हमें डाइवर्सिटी चाहिए थी, वो तो आ ही गई इसमें। नहीं नहीं, क्या कह रहा है वो कि टॉपर्स के पास डाइवर्सिटी नहीं होगी, वहां पे हमें डाइवर्सिटी का इशू होगा, राइट। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि टॉप स्कोरर के पास ही डाइवर्सिटी अब है। सो टॉप स्कोरर के पास ही डाइवर्सिटी है, तो अगर ये चीज हमने फुलफिल कर दी तो इस हिसाब से तो हमें टॉप स्कोरर्स को ले लेना चाहिए। सो दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट इनवैलिडेट्स द पैसेज का मेन आर्ग्यूमेंट। बट हमें टॉप स्कोरर से थोड़ी मेन प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम तो ये थी ना कि डाइवर्सिटी नहीं आती अगर हम टॉप स्कोरर्स को ले लेते हैं तो। मतलब मेन इम्पैक्ट जो था वो सिर्फ ये थोड़ी था कि टॉप स्कोरर्स को लेना ना लेना वाज अ प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम तो ये थी ना कि टॉप स्कोरर को लेने की वजह से डाइवर्सिटी नहीं आती। वो तो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया ना यहाँ पे, कि अगर हम टॉप स्कोरर को ले रहे हैं तो भी हमें डाइवर्सिटी मिल रही है। अच्छा, जैसे डी, बाकी ऑप्शन देखते हैं। मुझे बाकी ऑप्शंस में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था कि आंसर सी होना चाहिए, कि हम डाइवर्सिटी ला रहे हैं उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, उसमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और सॉल्यूशन पे नहीं आ पा रहे। कहाँ लिखा है सॉल्यूशन पे नहीं आ पा रहे? मतलब टाइम लग रहा है सॉल्यूशन पे आने में, तो तो कहाँ, डाइवर्सिटी। अच्छा ये चीज कहाँ लिखी हुई है, ज्यादा टाइम लगना गलत है सॉल्यूशन लाना में? ये कहाँ लिखा हुआ है कि फास्टर सॉल्यूशंस आर बेटर? ये तो नहीं लिखा। तो दिस इज योर सेल्फ अजम्पशन, दिस इज योर अजम्पशन, क्योंकि रियल लाइफ में मे बी बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंसेस तुम सोचते हो कि शायद फास्टर सोल्यूशन बेटर है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। मतलब मे बी कैट में फास्टर सोल्यूशन इज नेसेसरी, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इट्स नॉट नेसेसरी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लॉन्ग, लाइक पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू कम टू अ गुड सोल्यूशन। बट फिर बी भी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बी में भी तो ये चीज़ आ गई ना कि मतलब मेन चीज़ जो वो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो तो फुलफिल हो ही रही है यहाँ पे, तो इनवैलिडेट कहाँ कर रहा है। उसने कहा टॉप स्कोरर्स हैं, ठीक, टॉप स्कोरर्स। उसने मुझसे कहा कि मुझे एक टीम बनानी है 5 लोगों की। तो एक मेरिटोक्रेसी कहती है कि हर फील्ड से टॉप वाला ले लो, ठीक है, टॉप 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 टॉप, फर्स्ट 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 फर्स्ट, तो तुम्हारी अच्छी टीम बन जाएगी। बट ये कह रहा है ऑथर कि यार ये जो टॉप स्कोरर होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब उतने अच्छे से डाइवर्सिटी नहीं मिल पाएगी वहां पे। सो ही इज टेलिंग कि हमारे पास कोई सर्टेन टेस्ट नहीं है टू आइडेंटिफाई कि कौन सही सही एक्चुअल में उस तरह की नॉलेज रखता है, ठीक है। ये चीज उसने बोल रखी है। ये वाला जो बी वाला एग्जाम्पल है वो कह रहा है इफ टॉप स्कोरर्स पोजेस मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो अब वो कह रहा है जो फर्स्ट 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 आए हैं 5 लोग, उनके पास मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज भी है। सो दिस विल, यहाँ पे क्या था, लैक ऑफ डाइवर्सिटी थी, लैक ऑफ डाइवर्सिटी थी, इसलिए हम लोग टॉप 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 को नहीं ले रहे थे, राइट। बट टॉप स्कोरर के पास अब वो डाइवर्सिटी भी है। सो दिस इज समथिंग, हम क्यों नहीं ले रहे थे टॉप स्कोरर को, क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं थी। दिस वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। अब हमारे पास टॉप स्कोरर के पास ही डाइवर्सिटी है, ठीक है, टॉप स्कोरर के पास ही डाइवर्सिटी है। सो इट विल इनवैलिडेट द ऑथर्स मेन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ऑथर कह रहा है टॉप स्कोरर को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यार डाइवर्सिटी नहीं है, बट हम कह रहे हैं टॉप स्कोरर के पास ही डाइवर्सिटी है। सो दैट्स वाई ये इनवैलिडेट कर देगा ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट। ऑथर वाज कि टॉप स्कोरर इज नॉट डाइवर्सिटी, दिस इज टॉप स्कोरर इज डाइवर्सिटी। सो इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, देन इट इज गोइंग टू, ये नॉट है, देन इट इज गोइंग टू इनवैलिडेट द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट। ऑथर का क्या कहना था कि टॉप स्कोरर क्रॉस डाइवर्सिटी, हमारा क्या कहना है टॉप स्कोरर इक्वल्स डाइवर्सिटी। सो इफ दिस इज ट्रू, देन इट इज गोइंग टू इनवैलिडेट द ऑथर का आर्ग्यूमेंट। अब समझ आ रहा है कुछ? मतलब बेसिकली हम ये बोल रहे हैं ना इस चीज़ में कि मतलब
पैसेज में उसने बात करी कि हम सिर्फ टॉप स्कोरर्स को ले लेते हैं तो डाइवर्सिटी नहीं आती है, बट अब हमने इसमें ये बोल दिया कि टॉप स्कोरर्स को ले रहे हैं तो डाइवर्सिटी आ रही है, तो पूरा आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो गया ये। ठीक है समझ आ गया। चलो इसको देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज, which of the following teams is likely to be most effective in solving problem of rising obesity level? A team comprising of nutritionists, psychologists, or who have scored a distinction in their respective subject test. Toppers. क्या उनकी टीम बना के हमारे लिए बेटर होगा? A team comprising of this who have each performed well in their respective subject test. So they are not toppers, they are good performers. There is a difference between a topper and a good performer. ऑथर ने ये भी नहीं कहा है कि अब मैथमेटिशियन की जगह पे उसको ले लो, कोई एक रैंडम पर्सन, नॉन मैथमेटिशियन। ऑथर ने कहा ठीक ठीक परफॉर्मेंस चलेगी, ऑब्वियसली सब्जेक्ट नॉलेज तो होनी ही चाहिए। सो दिस कैन बी। फिर आता है अ स्पेशलाइज्ड टीम ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, एक टाइप के, फ्रॉम वेरियस कंट्रीज who are all trained in machine level this of random decision। इसमें बहुत से इश्यूज हैं। पहली चीज तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये एक चीज बोली गई थी बस ऐसे ही, उस चीज का कोई उतना रेलिवेंस उसमें नहीं था। पहली चीज। दूसरी चीज कि हमने डिफरेंट, क्योंकि हमारा जो ओबिसिटी है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सो हमने सिर्फ किसको लिया है? न्यूट्रिशनिस्ट को लिया है। सो वहां पे भी एक इशू है क्योंकि हमारे पास और तरह के नहीं आ पाएंगे व्यूज। ठीक है, सेम सेम सारे, अगर तुम्हें स्पोर्ट्स कमेटी बनानी है और तुमने सारे क्रिकेटर्स ही ले लिए, सो वो खेल खत्म हो जाएगा वहां पे। A specialized team of top nutritionist, यहाँ पे भी nutritionist वही same logic of various who also possess some knowledge of psychology, but यही दोनों चीजें थी क्या? न्यूट्रिशन की नॉलेज हो और साइकोलॉजी की नॉलेज हो, इन्हीं दोनों चीजें पे डिपेंडेंट था क्या? यहाँ पे तो करोड़ों चीजें थी जिन पे डिपेंडेंट था ये। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एवरीथिंग। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पे जो बोल दिया है, इंफ्रा, मीडिया, कन्वीनियंस, फूड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ही अर्बन प्लानिंग यहाँ पे बोल रखा है। अर्बन प्लानर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अर्बन प्लानर्स। तो ये भी हट गया, बी ऑप्शन हो गया। आई होप ये समझ आ गया होगा, इसमें किसी को डाउट है? यार इसमें भी तो वो यही बात कर रहा है कि वेल परफॉर्म वेल इन देयर सब्जेक्ट टेस्ट, तो ये तो एक तरह से फिर टॉप स्कोरर ही आ गया ना। ये दोनों हटा दें, सी और डी। मेरे को तो डी लग रहा था, बट डी में मेरे को टॉप वर्ड लग रहा है कि ये तो फिर टॉप आ गया, टॉप पर ही आ गया। ए और बी में देखते हैं, सी और डी तो नहीं लगना चाहिए। ए और बी देखते हैं। ए और बी में फर्क क्या है?
एक डिस्टिंक्शन है, एक टॉपर है और एक गुड परफॉर्मर है। सो विच इज मोर लाइकली बोलता है, इज लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव। लाइकली टू बी मोस्ट इफेक्टिव मतलब इनमें से कौन सा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा इस चार ग्रुप में से। देयर कैन बी वन मोर पर्सन, वन मोर ग्रुप जो कि इनसे भी अच्छा परफॉर्म करे, बट इन चार में से तुम्हें सेलेक्ट करना है। तो गुड परफॉर्मर ही आएगा। तो जो दिया है उनमें से सेलेक्ट करना है, उनमें से बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालना है। फिफ्थ पे आ जाओ। Which of the following best describe the purpose of the example of neuroscience? चलो इसको देखते हैं फिर। Which of the following best describe the purpose of the example of neuroscience? आओ देखें। Neuroscience. Even with the knowledge domain, no test or criteria applied to individual will produce the best team. Each of these domains possess such depth and breadth that no text can. Each of these domains possess such depth and breadth that no test can exist. Consider the field of neuroscience. मैं करोड़ बार शायद नहीं, 1 लाख बार, 1 लाख बार ये चीज बता चुका हूँ। ये आइडिया होता है, दिस इज व्हाट एग्जाम्पल होता है। आइडिया, एग्जाम्पल, ठीक। आइडिया बताएगा, एग्जाम्पल बताएगा। अगर तुम्हें आइडिया समझ आ गया है तो एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत उतनी नहीं है। यहाँ पे कंसिडर द फील्ड ऑफ न्यूरोसाइंस अपवर्ड ऑफ दिस कह रहा है इम्पॉसिबल है, ठीक, जो भी कह रहा है उसने। अब इस पे आते हैं। कह रहा है इन द मॉडर्न एज every field of knowledge is so vast that a meaningful assessment of merit is impossible. Every field of knowledge is so vast. Even with the knowledge domain, no criteria, no test or criteria applied to individual will produce the best team. Each of these domains मतलब का क्या मतलब होता है? Every field. Each of these domains possess such depth and breadth. So we are not just talking about neuroscience, we are talking about each and every domain. Every field of knowledge is so vast that a meaningful assessment of merit is impossible, so we will hold it. Unlike other fields of knowledge, neuroscience is an exceptionally complex field. तो कह रहा है बाकी फील्ड का तो नहीं पता, बट बाकी फील्ड को छोड़ देते, न्यूरोसाइंस में मीनिंगफुल असेसमेंट निकालना मुश्किल है। क्या उसने ये बोला है? तो ये हटा दो। In narrow fields of knowledge, a meaningful assessment of expertise has always been possible. क्या उसने ये बोला है? उसने कहा है कि each domain, any domain, neuroscience is advanced field of science because of its connections with other branches of science like ontology and biology। ठीक है, तो उसने ये एग्जाम्पल पर्पस ये बताने के लिए लिया था क्या? उसने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया था ये बताने के लिए कि न्यूरोसाइंस एक एडवांस कनेक्शन है उसमें, और फिर हजारों चीजें। समझ आ रहा है कुछ?
क्या आइडिया है, क्या एग्जाम्पल है। कभी भी टूल मत लगा देना प्लीज, टूल का ट्रैप तुम्हारे पास आएगा जरूर, जहाँ पे वो टूल को इतना एम्फसाइज कर देगा तुम्हें लगेगा कि यार हाँ ये न्यूरो साइंस तो बोल रखा था। तुम मैच द फॉलोइंग करोगे फिर उसके बाद तुम्हें भी पता है क्या होगा।